মই নৱখুকে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ গৰজি উঠিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ। অমিত শাহে বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে, কৈছে যে বাংলাদেশৰ ৰোহিংগিয়াই অবৈধভাৱে দেশত প্ৰৱেশ কৰিছে একমাত্ৰ মমতা বেনাৰ্জীৰ চৰকাৰৰ সমৰ্থনত। কেৱল ইমানেই নহয়, সমান্তৰালভাৱে কৈছে মছজিদৰ ইমামক বেতন দিয়ে মমতাৰ চৰকাৰে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক এনেদৰে হুংকাৰ দিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে। এটা ডাঙৰ খবৰ আমি মুহূৰ্তত লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। মছজিদৰ ইমামক বেতন দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে চৰকাৰে, ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে। আৰু ন্যায়ালয়ে বেতন দিয়াৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা বন্ধ কৰি দিলে। মমতা চৰকাৰে সেই ব্যৱস্থা আনিছিল, কিন্তু ন্যায়ালয়ে বন্ধ কৰি দিলে। বাংলাদেশী ৰোহিংগিয়াই চৰকাৰৰ সহায়ত দেশত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰিছে বুলিও বিস্ফোৰক অভিযোগ। মুছলিম কৰ্মচাৰীক ৰমজানত অৰ্ধছুটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে, অৰ্থাৎ মমতা বেনাৰ্জী চৰকাৰে মুছলমানৰ পক্ষত থিয় দিয়ে। বিজেপিৰ বিজয় সংকল্প সমাৰোহত মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক সমালোচনা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীলৈ কেইবাটাও প্ৰশ্ন কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অমিত শাহে কেইবাটাও প্ৰশ্ন কৰিছে। মুছলমান ৰাইজক সুখী কৰিবলৈ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ বিৰোধ কৰে। কেৱল ইমানেই নহয়, লগতে কৈছে মমতা দিদি ৱাকাফক বিৰোধ কৰি আপুনি কাৰ পক্ষ লৈছে? ৱাকাফ সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতা কৰি আপুনি কাৰ পক্ষ লৈছে? সমগ্ৰ মুছলমান বংগৰ জনতাই ৱাকাফৰ পক্ষত থিয় দিছে। কঠোৰ সমালোচনাৰ মমতা বেনাৰ্জীক থকা সৰকা এনেদৰে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ। আৰু পশ্চিমবংগত বিজেপিৰ বিশাল সংকল্প সমাৰোহত গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰিছে। এটা ডাঙৰ খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ। কেৰালা ষ্টৰীক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিলে মমতা চৰকাৰে। এই সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া, ৰাম জন্মভূমিৰ ভূমি পূজনৰ দিনটোত এখন নাটক ৰচনা কৰিলে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে, দুৰ্গা পূজাৰ বিসৰ্জনো চৰকাৰে পিছুৱাই দিয়ে। আৰু জনতাই ভাবে নিৰ্দোষী ভূমি হেৰাই যাবলৈ দিব নোৱাৰে। আৰু চৰকাৰী ভূমিত অবৈধ বেদখল হ'বলৈ আমি দিব নোৱাৰোঁ বুলি উল্লেখ কৰিছে। এতিয়া হুংকাৰ দিছে মমতা বেনাৰ্জীক গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে। এই ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে, 2026 পিছত মমতা বেনাৰ্জী মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিব নোৱাৰে, ক্ষমতাচ্যুত কৰা হ'ব বুলিও এতিয়া হুংকাৰ। মছজিদৰ ইমামক বেতন দিবলৈ আৰম্ভ কৰে চৰকাৰে। এই ডাঙৰ মন্তব্য গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ। কেৱল ইমানেই নহয়, ন্যায়ালয়ে বেতন দিয়াৰ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিলে। চৰকাৰে আনিছিল, অৰ্থাৎ মমতা চৰকাৰে সেই ব্যৱস্থা আনিছিল, ন্যায়ালয়ে বন্ধ কৰি দিলে। লগতে বিস্ফোৰক অভিযোগ যে মমতা বেনাৰ্জী চৰকাৰৰ সহায়ত দেশত বাংলাদেশী ৰোহিংগিয়া মুছলমানে অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰিছে। মুছলিম কৰ্মচাৰীক ৰমজানত অৰ্ধছুটি দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰিলে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। আৰু বিজেপিৰ বিজয় সংকল্প সমাৰোহত মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক উদ্দেশ্যি কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা, কঠোৰ কটাক্ষ কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে। মছজিদৰ ইমামক বেতন দিয়ে চৰকাৰে, বাংলাদেশী ৰোহিংগিয়াই অবৈধভাৱে দেশত প্ৰৱেশ কৰিছে মমতা বেনাৰ্জী চৰকাৰৰ সমৰ্থনত বা সহায়ত, এনেদৰে ডাঙৰ মন্তব্য। কেতবোৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে তীব্ৰ বাক্যবান এতিয়া গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ মমতা বেনাৰ্জীক উদ্দেশ্যি। মন্তব্য আছে, কি কৈছিল এখন জনসভাত, মন্তব্য লৈ আহিছোঁ। ममता दीदी, वक़्फ़ के कानून का विरोध कर आप किसका पक्ष ले रहे हो? पूरा बंगाल चाहता है कि वक़्फ़ अच्छे से चले, पारदर्शिता आए, निर्दोषों की भूमि न जाए, सरकार की भूमि पर अतिक्रमण न हो, मगर ये वक़्फ़ का विरोध कर रही है। ममता दीदी, 2026 तक कर दो, जितना विरोध करना है उतना, उसके बाद आप मुख्यमंत्री ही नहीं रहो। भाइयों बहनों, मस्जिदों के इमामों को वेतन देना शुरू किया, कोर्ट ने रुकवा दिया। बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनकी मदद से घुसपैठ कर रहे हैं। राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के दिन सद्भावना जुलूस के नाम पर नाटक किया। दुर्गा पूजा का विसर्जन पोस्टपोन किया। मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान में आधे दिन की छुट्टी दी। केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाया।
और हाजी नूरुल इस्लाम को टीएमसी का टिकट दिया और अंत में सबसे बड़ी बात मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध की। कार्यकर्ता भाइयों बहनों मुझे बताइए, ये तुष्टीकरण बंगाल में चलने देना है क्या? जोर से बोलो, चलने देना है क्या? आज संकल्प कर जाइए कि 2026 में ये ममता बनर्जी की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे, मूल समेत उखाड़ कर। भाइयों बहनों, एक महिला मुख्यमंत्री की शासन में आरजी कर मेडिकल का मामला होता है। सालों तक संदेश खाली की गरीब माताओं पर अत्याचार होता है और वो अपने वोट बैंक के संजो कर बैठ रही है। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, संदेश खाली का मुख्य अपराधी ममता दीदी किस पार्टी से था? आप लोगों को मालूम है? जरा जोर से बोलना, संदेश खाली का मुख्य अपराधी किस पार्टी से था? जोर से बोलो, किस पार्टी से था? आरजी कार के अपराधी किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? और ये महिला मुख्यमंत्री, माताओं बहनों के सम्मान की भी चिंता नहीं। एक ऐसा शासन है जिसमें आदिवासी, कुड़मी, राजवंशी, कोच, मतुआ, गोरखा, कायस्थ, आगोरी, मछुआरा कोई खुश नहीं है। नमो शूद्र भी खुश नहीं है। और अभी उन्होंने गोरखाओं को तो जितना बदला लेना था वो दे दिया, परेशान कर कोई कमी नहीं छोड़ी। ममता दीदी वक्फ के कानून का विरोध कर आप किसका पक्ष ले रहे हो? पूरा बंगाल चाहता है कि वक्फ अच्छे से चले, पारदर्शिता आए, निर्दोषों की भूमि न जाए, सरकार की भूमि पर अतिक्रमण न हो, मगर ये वक्फ का विरोध कर रही है। ममता दीदी 2026 तक कर दो, जितना विरोध करना है उतना, उसके बाद आप मुख्यमंत्री ही नहीं रहो। भाइयों बहनों, मस्जिदों के इमामों को वेतन देना शुरू किया, कोर्ट ने रुकवा दिया। बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनकी मदद से घुसपैठ कर रहे हैं। राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के दिन सद्भावना जुलूस के नाम पर नाटक किया। दुर्गा पूजा का विसर्जन पोस्टपोन किया। मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान में आधे दिन की छुट्टी दी। केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाया और हाजी नूरुल इस्लाम को टीएमसी का टिकट दिया और अंत में सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध की। कार्यकर्ता भाइयों बहनों मुझे बताइए, ये तुष्टीकरण बंगाल में चलने देना है क्या? जोर से बोलो, चलने देना है क्या? आज संकल्प कर जाइए कि 2026 में ये ममता बनर्जी की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे, मूल समेत उखाड़ कर। भाइयों बहनों, एक महिला मुख्यमंत्री की शासन में आरजी कर मेडिकल का मामला होता है। सालों तक संदेश खाली की गरीब माताओं पर अत्याचार होता है और वो अपने वोट बैंक के संजो कर बैठ रही है। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं,
संदेश खाली का मुख्य अपराधी ममता दीदी किस पार्टी से था? आप लोगों को मालूम है? जरा जोर से बोलना, संदेश खाली का मुख्य अपराधी किस पार्टी से था? जोर से बोलो, किस पार्टी से था? आरजी कार के अपराधी किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? और ये महिला मुख्यमंत्री, माताओं बहनों के सम्मान की भी चिंता नहीं। एक ऐसा शासन है जिसमें आदिवासी, कुड़मी, राजवंशी, कोच, मतुआ, गोरखा, कायस्थ, आगोरी, मछुआरा कोई खुश नहीं है। नमो शूद्र भी खुश नहीं है। और अभी अभी उन्होंने गोरखाओं को तो जितना बदला लेना था वो दे दिया, परेशान कर 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 कोई कमी नहीं छोड़ी। ममता दीदी